Hi everyone, my name is Dibjyoti and this year I cleared the DU LLB examination with an overall combined rank of 86 and I scored 269 out of 400. तो इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट एंड क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो किया है आई विल बी शेयरिंग दैट एंड अदर टिप्स दैट यू शुड नो फॉर योर अपकमिंग DU LLB examination or any general 3-year law exams. So let's get started. So first let's talk about the syllabus for DU LLB. सो DOLLB में जो क्वेश्चंस आते हैं दैट कंप्राइजेस फ्रॉम पॉलिटी, लीगल सेक्शन लाइक टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ एंड देन इट कम्स जनरल नॉलेज, बेसिक स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स एंड फ्यू रीजनिंग क्वेश्चंस. मैथ्स आता है बट वेरी रेयरली 1 or 2 questions. You can leave that if you want. But from 2023 onwards, DOLLB will be conducted under COET. So the syllabus might change, but overall it will exactly be the same. Now the question comes whether you need coaching or not. To be honest, when I started my preparation, even I was confused whether I should take coaching or do self-study. But my seniors told me that self-study will suffice. Do only mock tests from coaching institutes. That's it. So I will say that the exam is very moderate. It's not tough. It's not very easy also. So if you do self-study, you can easily crack it. So I don't advise you to take coaching and spend money on that. So yeah, this is my opinion. So this was the brief overview of the DOLLB. And now let's talk about the book list. कौन से बुक्स मैंने पढ़े and how I followed them. So start करते बेसिक पॉलिटी से. So DU asks very basic पॉलिटी questions which you can figure out from the previous year questions. And अगर आपको previous year questions चाहिए then you can get a guidebook like from Singles. I followed Singles like this, and there's also another book from Universal Publication that you can also follow. Basically in guidebooks में क्या होता है, आपको पॉलिटी दिया रहता है एंड लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली एंड जीके दिया रहेगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ होते हैं एंड देयर आर सर्टेन मॉक टेस्ट इन द एंड ऑफ द बुक. इट्स एन ओवरऑल पैकेज टू गेट यू थ्रू द प्रिपरेशन फेज and I will suggest you to get one of these, but my personal recommendation will be the Universal. That was a really good book and I followed the polity का जो MCQ section होता है उसमें like it was around 500 or 600 questions from polity and यहाँ पे 500, तो 1000 यहाँ पे हो गए. मॉक टेस्ट मैंने दिए थे तो उसमें क्वेश्चंस कवर हो गए. सो बेसिकली पॉलिटी इससे ही कवर हो गया था. सो आई डिड नॉट read any other books like Lakshmikant because that book is very big. तो DU के लिए आई डोंट थिंक यू नीड टू रीड लक्ष्मीकांत. rather save time and read other things. लीगल सब्जेक्ट्स लाइक टॉट वगैरह उनके लिए आई सजेस्ट देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड वाची लॉ. दैट्स अ वेरी गुड चैनल, यू कैन फॉलो इट एंड आपका जितने भी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स है यू कैन डेफिनेटली कवर फ्रॉम दैट. फॉर करंट अफेयर्स व्हाट आई डिड वाज दैट आई सब्सक्राइब टू फिनोलॉजी लीगल. उनका करंट अफेयर्स का मैंने वो लिया था, बैच लिया था. सो मंथली उनका PDF आता है. सो आई कवर्ड फ्रॉम दैट एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन आई फाउंड अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड टाइटेनियम एकेडमी. तो उनका जो करंट अफेयर्स था दैट वाज रियली हेल्पफुल. लाइक इट कवर्ड लाइक A to Z एंड सीरियसली आई डोंट थिंक उनसे बेटर करंट अफेयर्स मुझे कहीं पे भी मिला है टू बी ऑनेस्ट. दैट रियली हेल्प मी. सो माई करंट अफेयर्स was sorted and I also followed other YouTube channels like Law Digest by Ayushi and Courtroom by TLI. So उनके YouTube channels में भी videos आते थे for current affairs, so I followed them also. GK questions आते हैं, आप बेसिक अरिहंत की किताब उठा लो. So for your basic overall GK मैंने तो बस एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले बस एक बार ग्लैंस तो किया था for like important dams, rivers, mountains and ये सब चीज़ें बेसिक जो होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स देयर इज़ ऑल्सो वन पार्ट रीजनिंग, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग. माई रीजनिंग वॉज नॉट गुड. तो मैंने RS अग्रवाल की किताब आती है फॉर नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग. सजेस्ट यू नॉट टू बाई दैट बुक बिकॉज इतना भी नहीं आता DU में. यू कैन जस्ट फॉलो द बेसिक टॉपिक्स लाइक कोई टॉपिक आता है सपोज सर्कल पैटर्न्स हो गए या फिर कुछ भी टॉपिक्स उठा लो PYQ आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर द क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट एंड सर्च दैट ऑन यूट्यूब. आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे. आई विल सजेस्ट द यूट्यूब चैनल्स इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन फॉलो देम. मैथ्स आता है बट टू बी ऑनेस्ट मैंने मैथ्स छुआ भी नहीं था.
बिकॉज आई थॉट कि यार मैथ्स में टाइम दूंगा तो बाकी चीज़ों में टाइम जाएगा, सो इट्स बेटर दैट आई अवॉइडेड मैथ्स एंड लकीली मैथ्स का क्वेश्चन भी नहीं आया था. सो या यू कैन टोटली अवॉइड इट. But from 2023 onwards, DOLB will be conducted under COET. सो मैथ्स शायद आ जाए ज़्यादा. मैथ्स बेसिक अच्छा है, देन नो नीड टू वरी. बेसिक क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड बस वॉल्यूम का कुछ आता है, क्यूब्स वगैरह, बस दैट्स इट, एंड प्रोबेबिलिटी. दिस वाज द ओनली बुक लिस्ट एंड आई फॉलोड. एंड बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स में इतने PDF मिल जाते हैं लाइक फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स. एंड वंस यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप्स, आपको लाइक मटेरियल की कमी नहीं होगी. To be frank, stick to very few resources and revise them multiple times. As much as MCQs as possible from different publications, be it your guidebooks, be it your PYQs, and most importantly PYQs, because काफ़ी बार repeat हो जाते हैं questions. जितना आप practice करोगे MCQs, the more confidence you will get, and you will be able to eliminate the options in a better manner. And speaking of MCQs, now after reading all of them, you are covering the most of them part. Now let's start joining the mock series from any institute. You can practice from previous year questions, or you can take mock tests from any coaching centers. मैंने TOLI by Sahad sir उनका mock test लिया था, and I had some friends from like उन्होंने Law Digest by Ayushi ma'am उनका लिया था. So between two of them, the most costly one was the TOLI. जब मैंने लिया था, it was around 4,500 something, but it was expensive, man. It was really expensive. But to be honest, जो सबसे मुझे better लगा, that was TOLI. Although इसका level बहुत hard था, but I felt that played a very good role. To be honest, वो expensive था, but it was really helpful. इसका level बहुत hard रहता था. So while giving the mock test, जो मेरे score आते थे, they were ranging from anywhere between 190 to 240. I think that's the highest I got. So और बाकी जिनका scores आ रहा था, they were above 300. So I was bit scared, but I found कि जो मैं गलती कर रहा हूँ उसको I used to note it down अच्छे से कि कहाँ पे गलती हो रहा है. I do not used to make those repeat the next time. तो I used to make a note of that. And बाकी जो mock है from Law Digest by TOLI, तो I have a friend, तो उसने लिया था by Law Digest. तो मैंने उसका देखा था, बट उसका लेवल वॉज मॉडरेट. कुछ कुछ गलती भी थी, बट इट्स ओके फॉर द प्राइस. वो उतना एक्सपेंसिव नहीं था. बट आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन अफोर्ड TOLI, देन डेफिनेटली टेक द मॉक टेस्ट फ्रॉम TOLI. एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एनी वे, बट जस्ट शेयरिंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन. सो रेस्ट इज़ अप टू यू. आप मॉक टेस्ट ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आपको टेलीग्राम चैनल्स में भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. बेसिकली क्या होता है, लाइक द स्टूडेंट्स इज जैसे कि मैं अभी लाइक क्लियर द DOLB, नाउ आई विल मेक ए चैनल एंड क्रिएट ए मॉक टेस्ट. एंड मॉक टेस्ट क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उसको ही कॉपी पेस्ट करके मॉक टेस्ट आई विल सेल इट. तो यू कैन प्रैक्टिस them, but I won't suggest get a better one for your sake. So it's all up to you whether you want to practice from your books, from coaching centers, or just self-study. Anything works actually, but you need to give mock tests, practice as much as MCQs as possible. Now let's talk about some things that whether I'm satisfied with my result or not. To be honest, yes, I'm satisfied. अच्छा हो सकता था, you know, like 280 290 भी जा सकता था मेरा. But in the exam center I took the risk because कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, and I was scared कि यार नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा. But luckily फ्रॉम द कैटेगरी आई एम बिलोंग टू, अगर मुझे कम भी आएगा तो भी मेरा एडमिशन हो ही जाएगा. दैट वाज फॉर श्योर. बट वो मेरे दिमाग में नहीं था. द थिंग दैट वाज इन माय माइंड वाज टू गेट इनटू हॉस्टल. तो हॉस्टल के लिए चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, लाइक टू बी ऑनेस्ट, वेरी हाई मार्क्स. आई टुक द रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग एज मच क्वेश्चंस आई वांट. आई थिंक मैंने 92 या 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एंड या उसमें लाइक 21 क्वेश्चन गलत हुए. वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर DOLB, कि आप DU के साथ साथ बाकी जो 3 ईयर LLB एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक AU, इलाहाबाद एंड पंजाब यूनिवर्सिटी एंड महाराष्ट्र का MSCET होता है, सो आप उनको भी दो. एंड साथ साथ आप DU को भी दे सकते हो. इतना कुछ मेजर नहीं है. मैंने दिया था चारों ही, सो चारों मेरा निकल गया था. बट आई वांटेड DU, सो आई वेटेड फॉर DU's रिजल्ट. बट DU का रिजल्ट बहुत लेट आया इस बार.
तब तक सारे रिज़ल्ट आ चुके थे MSc का, PU एंड AU। तो मैंने उनके सीट्स को छोड़ दिया। लकीली मेरा हो गया DU में। सो डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन एग्जाम्स आउटकम, डू फिल योर फॉर्म्स फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। इससे क्या होगा ना आपको कि आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा वाइल एंटरिंग इन द एग्ज़ाम हॉल। लाइक माय फर्स्ट एग्ज़ाम वाज PU। तो PU में OMR शीट में होता है एग्ज़ाम। तो वो सब देख के एंड वाइल फिलिंग द OMR शीट मैंने एक गलती कर दी थी कि सपोज एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मैंने उसके नेक्स्ट नीचे वाले में मार्क कर दिया था, विच आई रियलाइज लेटर ऑन। तो गलती हो गई, सीक्वेंस वाइज 3-4 एक साथ गलत हो गया था। तो वो एक प्रेशर रहता है। तो प्रेशर के कारण यू डोंट perform that well as you are in home. Pressure in the exam center is something which you need to take care of. तो इसीलिए अप्लाई टू अदर एग्ज़ाम्स जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, फॉर देम आई लाइक टू से ऑल द बेस्ट। एंड आपको अगर कोई भी नीड हो, यू कैन मैसेज, यू कैन टेक्स्ट मी और लीव ए कमेंट, आई रिप्लाई। एंड मेरे जो नोट्स थे जो मैंने फॉलो किया था, एवरी रिसोर्स आई हैव कंपाइल्ड देम इनटू वन PDF एंड वन फोल्डर। So you can just check the link in the description. I have uploaded the relevant material which I followed. So guys, this was the guidebook that I was talking about. It's from Singles SS Guide for LLB, and this was the 26th edition. So इसके जो कंटेंट्स है बेसिकली देख लो, आपका बेसिक पॉलिटी कवर हो जाएगा यहाँ से। एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट आई मार्क्ड विच आई फेल्ट दैट इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये ज़्यादातर आ रहे हैं एंड आई फेल्ट कि दीज आर द वंस विच आई शुड रीड मच इन ए बेटर वे। तो आपका बेसिक पॉलिटी यहीं से कवर हो जाएगा एंड एंड पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया रहेगा विद द आंसर, सो यू कैन टैली। नेक्स्ट आपका लीगल एप्टीट्यूड, बेसिकली आई वाज सेइंग कि क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल रीजनिंग भी यहाँ पे दिया होगा, सो यू कैन कवर फ्रॉम देम ऑल्सो। एंड आपका अगर बाकी GK वगैरह, इकोनॉमी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस, ये सब देख सकते हो। करंट अफेयर्स, ये पुराने करंट अफेयर्स है, सो डोंट फॉलो दिस, ओके। एंड इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप इतने भी कर लोगे इट विल बी मोर देन एनफ। बाकी लॉजिकल रीजनिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो दीज आर द टॉपिक्स विच यू कैन डू। एंड आपको अगर सपोज समझ नहीं आ रहा, you can follow the YouTube channels, and here are the topics I wrote down which are the important ones. बाकी लास्ट में आपको मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो इधर से आ जाएगा। एंड दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द लॉ सब्जेक्ट्स। लाइक IPC से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, टॉट, एंड दीज आर मिसलेनियस लाइक कमीशंस, लीगल टर्म, मैक्सिम्स, family law, etc. So yeah, this is the मैंने पढ़ा तो वही सब बेसिक जो मार्क है, इम्पॉर्टेंट वंस। तो या एक्चुअली ये बुक बहुत मोटी है, लाइक दिस बिग, बट जो आपका रेलिवेंट पोर्शंस होगा इट वुड बी समवेयर अराउंड दिस मच। या बाकी इतना कुछ नहीं पढ़ना है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड इसके अंदर ही आपको MCQs मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द वंस आई फॉलोड। एंड जो भी MCQ में से बार बार गलत होता था या कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई यूज्ड टू मार्क दोज क्वेश्चंस कि जब मैं लास्ट टाइम देखूँ तो आई कैन जस्ट ग्लैंस थ्रू दीज, ओके। सो या एंड पढ़ते हुए जो भी टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आता था या भूल जाता था, सो आई यूज्ड टू मेक दिस काइंड ऑफ नेमोनिक्स बोलते हैं इसको। सो टू लर्न द स्केड्यूल्स देयर इज़ वन नेमोनिक्स दैट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो आपको शेड्यूल वाइज आपको ऐसे याद हो जाएंगे। सो आई यूज्ड टू मेक दिस। एंड ये तो आर्टिकल्स हो गए पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, मुझे एकदम याद नहीं होते थे आर्टिकल्स वगैरह। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ दैट ये सब जो आर्टिकल्स है आई यूज्ड टू स्टिक इट अप ऑन माई वॉल, तो याद रहता था ऐसे। एंड दीज आर सम कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में
so that at the end moment I used to revise this. And yeah, this was it. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके कुछ कुछ प्रोविजंस। एंड गाइज मैं मेन वीडियो में बताना भूल गया, इन सब पढ़ने के लिए आपको बेयर एक्ट की ज़रूरत होगी। बेयर एक्ट बेसिकली जो लॉ होता है, इट इज़ एज यूजुअल एज द लॉ बुक, सो यू कैन गेट दोज बेयर एक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्ट आते हैं, द इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स जो होते हैं बेयर एक्ट में, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू गेट द बेयर एक्ट्स एंड रीड फ्रॉम देम। सो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो क्वेश्चंस में आते थे प्रीवियस ईयर में, तो उनको मैंने लिख के यहीं पे हाईलाइट कर लिया था। एंड ऐसे ही मैंने क्या किया था कि छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, लाइक आईपीसी हो गया, देन फैमिली लॉ का कुछ मैंने ऐसा किया नहीं था। फैमिली लॉ में बस 2-3 ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, वो आप देख लेना। आई विल बी पुटिंग देम इन माई नोट्स, तो यू कैन जस्ट मेक स्मॉल नोट्स एंड स्टिक इट अप ऑन योर वॉल। तो जो भी आपको याद नहीं हो रहा, यू कैन जस्ट डेली ग्लैंस थ्रू देम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, आई यूज्ड टू हैव दिस वन बाइंडर, जिसमें क्या किया मैंने कि पेजेस को सेग्रेगेट करके टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने इनके नोट्स, ये बेसिकली नोट्स नहीं है, दीज आर द थिंग्स, लाइक अगर मेरे मॉक्स में कुछ गलत हो रहा है या फील्ड आई थिंक आई शुड नो दिस फ्रॉम मॉक्स और एनीवेयर एल्स स्पेसिफिक टू द एग्ज़ाम पर्पस, आई शुड राइट इट डाउन। ठीक है, सो ये हो गया। देन यू हैव टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट डेज, तो मैंने डेज़ बना लिए थे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे सही रहता है। देन दिस फैमिली लॉ, देख रहे हो एकदम शॉर्ट वन लाइनर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड जस्ट हाईलाइट दी थिंग्स। तो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस कि आपको नोट्स एकदम स्मॉल बनाना है रिवीजन पर्पज़ के लिए। ठीक है, एंड ये आपका हो गया फैमिली लॉ। ठीक है, फैमिली लॉ में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिनका मीनिंग पूछ लिया जाता है कभी कभी, सो दीज आर द टर्म्स। तो ये मेरे कुछ नोट्स थे। एंड ये देखो, जैसे ये लीगल सेक्शन से देख रहे हो मेरा क्या है, TLOI मॉक्स। तो बेसिकली क्या होता था कि मॉक्स में जो मैंने गलती की है था, तो उसको मैंने यहीं पे नोट डाउन कर लिया था एक रजिस्टर में, कि बाद में अगर मुझे देखना हो तो आई विल जस्ट गो थ्रू देम। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, व्हेन वाज फ्लैग, इंडियन फ्लैग वाज फर्स्ट इनॉग्रेटेड, एंथम कब संग किया गया था फर्स्ट सेशन। तो ऐसे छोटे छोटे मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो यू नीड टू टेक केयर। एंड हियर आर सम लीगल जीके जो उस टाइम पे ज़्यादा चल रहा था, है ना। सो या यही ये था बेसिकली। और आपको और एक चीज़ पढ़ना है, जो यूएन का इस यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर DLLB बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज मैनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस, सो डू नॉट लीव दिस पार्ट। एंड उसी से रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बना लिया था, लाइक 2023 दिस ईयर इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इट कैन बी आस्क्ड। तो G20 समिट अभी चल रहा है, तो आपके टाइम में G20 में क्वेश्चन आ सकता है, सो डो नॉट फॉरगेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, यूनेस्को एंड उसके जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ UN, ये सब। एंड या बेसिकली जो जी के स्टैटिक पोर्शन है UN का, सो मैंने यहीं पे नोट्स बनाए थे। सो या सो overall this was my main binder जिसमें notes, and these are my just short paper notes which I used to stick it on my wall। and इसके अलावा इनमें से कुछ पेजेस मुझे अभी मिले, वही नोट्स की है, देखो सेम वही मॉक्स में मैंने जो गलत किया था, दैट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैंने उसको एक स्टेपल करके एक बंडल बना लिया था कि इनको मुझे अच्छे से करके जाना है एनी हाउ। ओके,
एंड लास्ट में मैंने एक करेंट अफेयर्स टॉप बोल के एक बना लिया था, दैट आई फेल्ट विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, कि लास्ट मोमेंट में अगर मुझे कुछ रिवाइज करना है फ्रॉम करेंट अफेयर्स, आई विल बी गोइंग थ्रू दिस ओनली, नथिंग एल्स. सो 10-15 मिनट में आई यूज टू गेट डन विथ माई रिविजन. ये देखो, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो ना कि मंथली वाइज, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके मेक द इम्पॉर्टेंट करेंट न्यूज़, कि एग्ज़ाम पर्पज से आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है. सो आई यूज टू मेक दिस एंड हाईलाइट द वंस विच आई यूज टू फील कि मैं भूल रहा हूँ, या दीज आर द वंस विच आई फील दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, है ना, ऐसे करके. एंड देन आई टू गेट सेग्रीगेट टॉपिक्स. तो आप जब पढ़ो ना, आप टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करो कि अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, तो ऐसे ईजी रहेगा आपको. हैंड राइटिंग में मत जाना गाइस, बिकॉज बहुत ही वैसे लिखा था. और हाँ, ऐसे समिट्स भी याद कर लेना कि कौन कौन से समिट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डी यू ऑल्सो लव्स टू आस्क दिस. देखो ये सब अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स भी पूछ लेते हैं. ओवरव्यू मैंने सिलेबस वाइज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो यू कैन गो थ्रू देम. सो या दिस इज़ द वन थिंग. एंड गाइस, मैंने कुछ कुछ बुक्स भी लिया था फॉर करेंट अफेयर्स, ऑल्दो करेंट अफेयर्स आया नहीं था इस बार. लाइक आई गॉट दिस प्रतियोगिता दर्पण ईयर बुक 2022. इसमें मंथली वाइज आपको करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे ऐसे ना. बट देख रहे हो, एक भी पेज मतलब बहुत ही कम पढ़ा है एकदम. आई थिंक फर्स्ट के कुछ 10-20 पेज मैंने पढ़ा होगा, उसके बाद छोड़ दिया, बिकॉज यू डोंट नीड सो मच इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक LLB एग्ज़ाम, यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ बुक्स. आप यूट्यूब से हो जाएगा आपका. सो दिस वॉज द ओवरव्यू व्यू ऑफ द LLB एग्ज़ाम, द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड. सो या कीप grinding, keep working hard, and always remember this quote. So yeah guys, see you soon and all the best for your exams. Bye.